Yeah, Good evening, Alok ji. good evening, everyone. Good evening, Siddharthji. Welcome to day 3 of this challenge. And I'm again welcoming you for this amazing new session today on persuasion. Good. So we'll be waiting for some time. Let few Yes, more yes. people join No in. issue. Yeah, You can, give your feedback and anything which you learned from yesterday's session. Last 2 days you were there, Siddharthji. And yeah. See, last 2 days session from where Mhm. I understand uh, my new phones. Okay, Okay. where I was lacking that I understand from first day session that feedback I give you Sure. yesterday, Yeah, yeah. and from yesterday I understand the doing what we are doing Mm-hmm. is unknowingly. Okay. Basically, it is unknowingly. Mm-hmm. The cause and effect and why we are doing these things, it used to come in my mind that why all coaches follow the same pattern. Yeah. Okay, but yesterday I understand this pattern is as per some scientific process Mm-hmm. and for some reason. And Correct. yesterday I understand why we are doing all these things, Correct. how we can influence people. True, 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 Yeah, true. Exactly. So everything which we are doing is to influence people, as simple as that. There's no other yeah, reason actually, right? yes. Good. So it was a good learning, I would say. And the best part is at least you could recall where you were doing mistakes and now you are aware whatever you are doing is doing for what, Yeah, correct? definitely. The how portion is again, everybody is teaching how in some way or the other, indirectly, directly, maybe in paid programs or in, free things, but they're not talking about why. So you should be knowing why you are doing whatever you are doing. That's the point. And that is why I Yes, brought this yes. concept. Yeah, actually, see, the thing is, normally when we are into some free program Mm-hmm. or some free webinar like this, Mm-hmm. normally people never disclose why. Yeah, They disclose what, right. but not how and why. True. But here you disclose why we Mm-hmm. are doing this. If we came to know why we need to influence people and how we are influencing them, these things we know. So Yeah. now I can relate the two things, Mm-hmm. why and how. Correct, correct, So correct. it will be more simple. Mm-hmm. True, true, true. Yeah. Chalo, good. Good. At least, my purpose is getting solved. That was my actually endeavor to, let you know why we are doing all these things. Yes. And Yeah. this is not only by, hit and trial. The big coaches, they have learned from their, mentors that these things work. Whether they have read it or not, but they have seen it working, and that is why they are following. And everybody is Yes. copying. And as I said, 95% of the people are imitators. They're just Yeah. copying somebody. But you should be knowing why you were doing something. That's okay. Yeah. Chalo. So we'll start. We'll not wait for long. Actually, a few people text me that they'll be joining little late. That's okay. Okay. We need to start as per the timing because we need to close as per the timing as well. So let's start. What do you say? Yeah, or we can definitely wait for 3-4 minutes more, and then from 7:05 approx. So Okay. 7:07 or 7:08 we can start. Okay. Chalo, let's wait for another 1 or 2 Yeah. minutes. I don't mind. Yes. Okay. 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 Good. So anything else you'd like to share? How your journey is going on and how you are moving ahead? If you can add some value to the people, maybe the recordings which people might be seeing later on. See, definitely. Uh, if you see my today's post Mm-hmm. and today's story, Mm. so you will understand now. I am understanding the concept of मतलब कैसे लिखना है, कैसे मेरा पर्सनल स्टोरी के साथ लर्निंग को रिलेट करना है, Mm-hmm. जो मैं पहले खाली ज्ञान दे रहा था। Mm-hmm.
तो ज्ञान नहीं देना है मुझे, मुझे मेरा बैक स्टोरी के साथ रिलेट करना है। तो आउट ऑफ फियर, फियर के ऊपर मैंने लिखा कि लोगों का फियर लेके मैंने मेरा पर्सनल स्टोरी शेयर किया। जब मैं महाराष्ट्र में एक रिमोट एरिया में जॉब के लिए गया था, वहाँ का जो मेरा जो बॉस था, उसका टेरर था वो एरिया में। ओके। हाँ, मतलब वो कंपनी में टेरर था कि वो बंदा बहुत खूंखार है, किसी को टिकने नहीं देता। दो मैंने जॉब छोड़ा करीब 2 साल बाद, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया था, एंड ही वॉज माई बेस्ट मेंटर। एचआर के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। राइट। तो अगर वो फियर रहता, वो फियर में मैं ज्वाइन नहीं करता, तो मैं ये एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पाता। करेक्ट। तो उसको मैंने कोचिंग के साथ रिलेट किया कि कोचिंग में क्या होता है, पीपल के लोग सोचते हैं अरे यार उसके पास जाऊंगा, उसके पास रिजल्ट नहीं है। जब तक वो ट्रायल एंड एरर करके ट्राई नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसको इस हिसाब से मैंने रिलेट किया, और उसी के ऊपर मैंने स्टोरी भी बनाया, सेम पोस्ट के ऊपर। तो आप थोड़ा देखेंगे मेरा, तो आपको लगेगा कि हाँ पहले से बेटर। हाँ, 100% तो नहीं हुआ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पहले से बेटर हो रहा है। और मैं गाइडेंस भी मिल रहा है थोड़ा। ठीक है। मुझे अमित से भी मेरा बात होता है, अमित से भी गाइडेंस मिल जाता है, अमित जी से। और दूसरा, थोड़ा, क्योंकि अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता किसी के पास, दैट्स ओके। कैपेसिटी नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो सैनोसिब जो उजमा के पास थी, उजमा का स्टूडेंट है अभी भी, तो वो भी थोड़ा सा मुझे गाइड कर रही है। ओके। तो कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई तो अपना ये पोर्टल तो नहीं दे देगा, कोई अपना लर्निंग पोर्टल तो नहीं देगा, लेकिन हाँ जो पहले का मेरे पास है उसमें से मैं देख रहा हूँ पुराना लेक्चर वगैरह, राइट। और इस बहुत सारी चीज क्लियर हो रहा है। और कंटेंट के लिए यूट्यूब में नील पटेल और एक लड़की है, उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वहां से भी कंटेंट का मुझे अच्छा आइडिया आया कुछ चीजों में। चलिए, सी लर्निंग इज देयर एवरीवेयर। वही बात है हाँ, कि थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा स्लो होता है। हर किसी के अपने लर्निंग साइकिल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे भी हो, आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दैट गुड, दैट्स गुड। और मैं ये भी बनाया, ऑफर स्टैक भी मैं बना रहा हूँ मेरा, लो टिकट वाला बना दिया। तो लो टिकट में मैं देख रहा हूँ कि लोग मेंबरशिप पे जा रहे हैं ज्यादा। मतलब वो ट्रेंड है कि मेंबरशिप पे, लेकिन मेरा लर्निंग पोर्टल नहीं बना, इसलिए मैं मेंबरशिप के लिए नहीं जाऊंगा अभी। ओके। तो देखते हैं, मेरा प्लान है कि दिसंबर एंड तक मैं पोस्ट करूं, मेरा 25 दिसंबर के आसपास मेरा ऑफर लाऊं मार्केट पे। ओके। या मिठू जी आ गए। चलिए, गुड है। या गुड इवनिंग मिट्टू। वी वर वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल एंड वी वर टॉकिंग कि भाई क्या हो गया, why people are not joining in. Anyway, Polly said that she was actually she is expecting a baby, so उनका थोड़ा सा डॉक्टर का है, इधर उधर अभी जाना, तो अभी उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट एनीवे, फ्यू मोर पीपल हैव सेड, बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू वेट मोर। अभी 7:10 होने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। करेक्ट। सो let me share my screen and start immediately. Okay, so welcome to day 3 of this triple three challenge, and today we are going to talk about the third key of this challenge, which is persuasion. So we have already learned about influence and its correlation with branding, authority, and lead generation yesterday. And I hope it were really new stories for you. If you want to share any feedback from day 2, you're most welcome. In short, we are not going to take much time. कोई कोई अच्छी चीज कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज लेट मी नो योर लर्निंग्स और फीडबैक। कोई ऐसी चीज जो आपको याद रह गई हो कल के सेशन में, कोई एग्जांपल, कोई स्टोरी, कोई कॉन्सेप्ट, सो प्लीज डू शेयर सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। एक एक लर्निंग बता दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यस, आई एम Sir, I वेटिंग। have written I have written so many points, लेकिन इतने सारे, लेकिन एक वो रीडायरेक्शन वाला मुझे याद है।
एक समथिंग यू टेलिंग नो जस्ट कभी कभी हम एक पियर वाला भी याद है यू नो दैट जब हमारा पियर वो लेते हैं तो देन आल्सो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड विद द पियर और एक होता है तो नेगेटिव वाला होता है ना नेगेटिव अप्रोच से भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो वाला जो भी आपने बताया था कि वो भी कुछ रिडायरेक्शन वाला सो दैट दैट आई रिमेम्बर और वन मोर आपने कहा था कि मतलब बहुत अच्छे से actually I have to copy and read so many points but I have to just go through once but it was really very very helping because all these points you have said this is very valid point and each point is very much we can use in our like techniques when comment or everything. Correct. Actually, whatever we are doing behind the scene, these are the reasons actually. यदि हम उस रीजंस को समझ लेंगे ना तो और अच्छे से कर पाएंगे. दैट इज व्हाट मी एंड इवन सिद्धार्थ जी वाज टॉकिंग कि अभी तक कर तो रहे थे लेकिन पता नहीं था क्यों कर रहे हैं. लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं. सो वी वेर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग अदर पीपल डूइंग इट. नाउ वी नो दैट देयर आर actually scientific reasons behind it and it is scientific in the way because the human behavior is like that, right? Chaliye, good. So let's get to the point now. So today is day 3 and we are going to talk about key 3 which is persuasion. So anybody can define persuasion. What do you mean by persuasion? होता क्या है persuasion? हम लोग वर्ड तो बहुत सारे यूज करते हैं बट होता क्या है? मतलब pursue means to follow something what I can say Yeah, yes, by word it is okay. सेल्स के लैंग्वेज में sales के language में means continuity कैसे हाँ, to an extent that is okay. So let me just define in simple words. Persuasion is a process in which one person or entity tries to influence another person or group. As simple as that. And this is to change their beliefs or behaviors. Welcome, Saurav. Good to see you. Okay, we just started actually. We started a little late, but anyway, you're just in time. So persuasion is a process in which we try to influence another person. One person or an entity is trying to influence another person or group so that they change their beliefs or behavior. So if you have seen in my last 2 days, I've talked about first of all acceptance and second influence. It is all about influence actually. Persuasion is also a subset of influence where we are trying to influence another person to change their beliefs and behaviors. अब ये belief और behavior किस sense में होता है? So that people are coming to us. As simple as that. We are here for not for charity. Nobody is here for charity. Everybody is here for business, right? So business में क्या होता है? We need to attract clients. मैंने उस दिन भी बोला था, for a transaction to happen, you need to have a buyer and a seller on a common platform, right? और कॉमन प्लेटफॉर्म पे यदि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर लो मतलब वो ट्रस्ट बिल्ड करके आए अथॉरिटी के आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करके आए सो द ट्रांजैक्शन बिकम सिंपलर फिर ऑब्जेक्शंस कम होते हैं दैट इज कॉल्ड परसुएशन. सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग एंड परसुएशन? हम लोग इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं हम लोग कन्विंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं. माइंडेड छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट माइंडेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Why I'm not talking about convincing people? Why I'm talking about influencing and persuading people? Persuading people. बहुत फर्क होता है मैं बताता हूँ. People are trying to convince people to buy, which is a wrong approach in sales. आप यदि convince कर रहे हो बेचने के लिए ना इसका मतलब that person is not ready. You are somehow trying to make any probable permutation combination so that your product is sold. Actually सेल्स ऐसी होती ही नहीं और सेल्स ऐसी करनी भी नहीं चाहिए. वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है. परसुएशन इज लाइक क्वालिफाइंग पीपल like people are coming to you and you are saying yes or no to them. See, there is a difference between convincing and persuasion. Convincing में क्या होता है? आप जा रहे हो लोगों के पास, आप जाके कहते हो भाई ये चीज ले लो ये चीज ले लो. करेक्ट? परसुएशन इसका उल्टा है. परसुएशन इज व्हाट? लोग आते हैं. यस सिद्धार्थ जी बताइए. थोड़ा सा मुझे डाउट यहाँ पे है. कन्विंसिंग में जो मेनली आउटरीच प्रोसेस है वो कन्विंसिंग वाला ही होगा ना, बिकॉज
वहां पे मैं लोगों के पास जाके उनको कन्विंस कर रहा हूँ, भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। नहीं, ऐसा। आउटरीच करने का मतलब ये नहीं कि आप सेल कर रहे हो। आउटरीच तो जाके आप रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए करते हो, हाँ। राइट। लेकिन जब हाँ। वो स्टेप आता है जहां पे आप सेल्स की बातें करते हो, हम्म। वहां पे आप कन्विंस कर रहे हो, मतलब कि दैट पर्सन इज नॉट रेडी एंड यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग सो दैट दे बाय योर प्रोडक्ट। ये होता है कन्विंसिंग। आप उनको बोल रहे हो भाई ले लो, इससे आपका ये अच्छा हो जाएगा, ये भला हो जाएगा, आप ये कर लोगे, आप ये कर लोगे, ये होता है कन्विंसिंग। परसुएशन इसका उल्टा है। परसुएशन में क्या होता है, बंदा वो सोच के आता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, एंड यू आर नाउ क्वालिफाइंग टू से यस और नो टू दैट पर्सन। यही फर्क है। अगेन, यदि मैं उसको इन्फ्लुएंस से रिलेट करूँ तो जो मैं चेजिंग और चूजिंग में बोलता हूँ ना, कन्विंसिंग इज चेजिंग, यू आर कन्विंसिंग, भाई ये चीज बहुत अच्छा है, ओके। ले लो ले लो ले लो। एंड परसुएशन इज चूजिंग। लोग आ रहे हैं आपके पास और आप कहते हो कि के नाउ यू हैव कम हियर, नाउ आई एम गोइंग टू सी वेदर यू आर फिटिंग फॉर मी और नॉट। आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो परसुएशन इज मोर ऑफ क्वालिफाइंग रेदर देन कन्विंसिंग, ओके, गॉट इट, राइट। अंडरस्टैंड। और उसमें क्या होता है ना, आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है। परसुएशन में ऑब्जेक्शन ना के बराबर होता है, और कन्विंसिंग में हर स्टेप पे आपको मतलब उनको कन्विंस करना पड़ेगा, हाँ। राइट। वहां पे ऑब्जेक्शंस बहुत सारे होते हैं, राइट। सो द पॉइंट इज, इफ यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल प्री सेल्स, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिंपल हो जाता है, करेक्ट। और उसी को हम परसुएशन कहते हैं। मतलब आप एक ऐसी अथॉरिटी पे हो जहां पे आप कहते हो ठीक है जी, आप मेरे लायक हो या नहीं हो, मैं आपको लूं या ना लूं अपने प्रोग्राम में, करेक्ट। ऑन द अदर साइड व्हाट पीपल आर डूइंग, पीपल आर चेजिंग कि भाई आ जाओ मेरे प्रोग्राम में, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यही दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो इस चीज को समझना है, दैट इज वाई परसुएशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। वेलकम मीना जी, यू वर नॉट देयर यस्टरडे, आई अंडरस्टूड कुछ बिजी रहे होंगे आप। ओके, सो जो परसुएशन की मैं बात कर रहा था उसका डेफिनेशन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस परसुएशन इन आवर बिजनेस। परसुएशन हम बातें तो कर, एक्चुअली हमें तो बिजनेस करना है। अब परसुएशन को मैंने डिवाइड किया 5 एलिमेंट्स में, विच इज प्री सेल सिस्टम, द एंटायर सेल्स प्रोसेस, पोस्ट सेल्स प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड जर्नी, करेक्ट। अब ये पूरा पूरा परसुएशन है। मतलब हर जगह हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पे हम क्वालिफाई कर रहे हैं लोगों को, करेक्ट। So let's move to the first point of persuasion, which is pre-sale system. So what do you understand by a pre-sale system? नाम से ही क्लियर है, प्री सेल सिस्टम मतलब सेल्स के पहले हम कोई ऐसी सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम कुछ करते हैं। सो वो चीजें क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। What are those elements which we do as a pre-sales? So pre-sales is a set of activities that take place before a sale is closed to help identify, qualify and prepare potential customers for the sales. अभी अब बताओ कितने लोग प्री सेल सिस्टम यूज कर रहे हैं अभी। आप लोगों में से कोई भी जो कि सेल्स कर रहे हैं, क्या प्री सेल सिस्टम यूज कर रहे हैं आप? यस और नो? Please mention in the chat yes or no, or you can directly open your mic and speak out. How many of you people are using pre-sale system? या डायरेक्टली सेल्स पे कूद पड़ते हैं, चलो भैया आओ और सेल्स करते हैं? नहीं, मैंने चालू किया लेकिन नॉट फुल्ली। ओके, ओके, बहुत सारा चीज जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे करना है तो वो मैं करूंगा। राइट, But I have understand what is pre-sales, how I have to nurture my leads. That I understand fully. ओके। Who else has adopted? Okay, मिठू कहती हैं आपने नहीं किया है, you should be doing it. Okay, बट इसका पर्पस समझिए। इफ यू आर नॉट डूइंग प्री सेल्स ना, सेल्स पे आपकी मेहनत बढ़ जाती है, वहां पे आप फिर वो कन्विंसिंग मोड में चले जाते हो कि मैं लोगों को कन्विंस कर लूं। पर्पस क्या है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इस चीज को समझिए। यदि आप डायरेक्टली सेल्स पे जाते हैं आपको बहुत सारा ऑब्जेक्शन झेलना पड़ता है। यदि आप प्री सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो आपका सेल्स प्रोसेस सिंपल हो जाता है, राइट। दैट इज वाई प्री सेल्स इज इंपॉर्टेंट। और मैं प्री सेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ ताकि हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो आसान हो जाए एंड हमारा सेल्स साइकिल इजी हो जाता है। सो अ प्री सेल सिस्टम इज एज सिंपल, is there to help you identify your potential customers, right? Then qualify your potential customers,
एंड प्रिपेयर देम फॉर द सेल। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा अचानक से आंख बंद करके आपकी चीजें खरीद लेगा, ऐसा होता नहीं है। सो यू वी हैव टू प्रिपेयर, सो दैट इज व्हाई अ प्री सेल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? Now, what are the elements of pre-sales? Let's talk about it. So, prospecting and qualifying leads. तो प्री सेल्स में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, एंड वी डिटरमिन दैट वेदर दे आर अ गुड फिट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। लेट्स से आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी कहते हैं यार मेरे पास पैसा ही नहीं है। करेक्ट? सो आर दे योर पोटेंशियल कस्टमर्स? नो। Or even if they have money and they're not willing to invest, are they your potential customers? No. So in the pre-sales, we need to decide and find out, qualify who all are our potential customers. यदि वो हमारे potential customers नहीं है तो उनके साथ टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द चीज। ठीक है? तो हमारा ये प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्री सेल्स। तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, जैसे यदि आप लोगों ने मेरे पहले सेशंस देखे होंगे, चाहे कोई भी कोच है जो यही बताता है जी अपना बैनर बना लो, अपना प्रोफाइल सही कर लो ताकि यू एक्चुअली अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। राइट? तो एक तो अपने राइट ऑडियंस को किया, उनके हिसाब से अपने कंटेंट बनाया सो दैट इट स्टार्ट्स टॉकिंग टू देम, and then qualifying happens doesn't on the post, qualifying happens when you start talking to them। उनका पेन आप जब समझते हो तो आप उनसे पूछते हो कि भैया आप पैसे देने के लिए तैयार भी हो या नहीं हो, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट, डायरेक्टली पूछो आप, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हो, प्रॉब्लम है, डॉक्टर पूछता है पैसे लाए हो कि नहीं आए हो, पता है आप पैसे लेके ही आए होगे। बट कोचिंग इंडस्ट्री में क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए नहीं होता कि वैसे प्रीसेल सिस्टम से हम गुजरते ही नहीं है। यदि हम अपना प्रीसेल सिस्टम ऐसा बना लें ताकि हमारे पास भी जो लोग आए वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो, यार मुझे इनके सर्विस लेने के लिए इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तो इट्स ओके। राइट? हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, पता होता ना वहां पे फ्री में एडमिशन नहीं होगा। वी आर मेंटली फ्री। कॉलेज में बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, पता है जेब में पैसे लेके जाएंगे तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो यहाँ भी, और उन्होंने क्या किया, एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रख दिया, बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने बोला कि जी इतने बच्चे क्वालिफाई कर दिए, अब पेरेंट्स इतना पैसा लेके आओ तो एडमिशन होगा, नहीं आया तो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो गया। होता है ना? तो क्या इस तरह का सिस्टम हम अपने बिजनेस में नहीं बना सकते? वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। यदि स्कूल है, कॉलेज है, वो भी तो एक बिजनेस ही है ना। उन्होंने अपना एक क्वालिफाइंग सिस्टम बना रखा है, तो हमें अपने बिजनेस में भी एक क्वालिफाइंग सिस्टम बनाना है ताकि जो आए वो मेंटली प्रिपेयर होके आए कि यस वी हैव टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ मनी, एंड उसके बाद ही हमारी गाड़ी बढ़ेगी। तो बिजनेस है, पैसे के बिना आप कब तक काम कर लोगे? राइट? यू नीड मनी टू ग्रो योर बिजनेस। यदि आप फ्री में करते रहोगे तो कब तक आप खुद सर्वाइव कर पाओगे? करेक्ट? सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई, ये पहला स्टेप है। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। ओके, द सेकंड स्टेप। सो पहला ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। सेकेंड इज प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च। ये बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखा देखी, इधर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया सॉरी, उधर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, बट वी डोंट एक्चुअली गैदर एंटायर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड द मार्केट। मार्केट की इंफॉर्मेशन, मार्केट की रिसर्च नहीं करते हैं। आप लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने, बहुत कम ही लोग हैं, बट आप लोगों में कितने लोगों ने एक्चुअली मार्केट रिसर्च किया है? मार्केट रिसर्च बहुत नहीं करते हैं, बहुत लोग, बहुत रेयर लोग करते हैं एक्चुअली। राइट? और हाँ, ये चीज मैंने शायद पहले भी बोली थी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट रिसर्च एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च? एनीवन? मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में फर्क क्या होता है? मार्केट रिसर्च इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिक डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। हिस्टोरिक डेटा का मतलब क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में वो प्रोडक्ट कैसा बिहेव किया है, वो सर्विस कैसे बिहेव की है, क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है, वो सारा डेटा, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च। एंड मार्केटिंग रिसर्च इज अबाउट द फ्यूचर नीड्स, कि फ्यूचर में क्लाइंट को क्या जरूरत होगी, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट रिसर्च। राइट? मार्केट रिसर्च का मतलब कि पास्ट में क्या हुआ है, उससे आपने क्या सीखा, उसके बेस पे आप क्या एक्शन लेने वाले हो। सो द वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर डूइंग मार्केट रिसर्च। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च आपको करना चाहिए अपने निश के लिए,
आपके निश में लोगों ने क्या किया है पहले, आज के डेट में कैसा कर रहे हैं, क्या उसका मार्केट शेयर रहा है, कैसे लोगों ने उस चीज को किया है, व्हाट ऑल टूल्स एंड सिस्टम्स दे हैव अडॉप्टेड। यदि ये चीजें हम कर लेते हैं ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। राइट, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, डेटा एंड कस्टमर एनालिसिस। डेटा अगेन, जो मैंने आपको मार्केट रिसर्च बोला, मार्केट रिसर्च तो मार्केट के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आपका कस्टमर का एनालिसिस है, एनालाइजिंग डेटा एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स। ये भी बहुत कम लोग करते हैं, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं लोग, एंड पीपल जस्ट जंप इनटू द बिजनेस कि चल भाई अब तो हम आ गए, हम कर लेते हैं। राइट, सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्री सेल्स। प्री सेल्स की सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग कॉल्स। ये बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग सिखाते भी हैं, और इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम में भी मॉक कॉल्स की चीजें हैं जो हम करते हैं। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक कॉल्स एक्चुअल लर्निंग कराती है कि सेल्स की कॉल पे आप जाते हो, क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द प्री सेल्स, बट ये आपके लिए है, वेर यू आर प्रैक्टिसिंग कॉल्स इन ऑर्डर टू make yourself more skillful when you go on the actual calls, right? And then comes crafting a unique selling proposition. आप एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते हो विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस, करेक्ट? ये सारी सेल्स के पहले करोगे ना, तब तो आप सेल्स करोगे। यदि आपके पास ऑफर ही नहीं रहेगा, आपके पास कोई यूएसपी नहीं रहेगी, आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं रहेगा, तो आप बेचोगे क्या? राइट, ये सारा प्री सेल्स का पार्ट होता है। तो प्री सेल्स में फ्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर actually keeping in mind of the customer, and few things are for us to create something for the customers. Again, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, राइट? ये प्रोडक्ट तो हम बनाएंगे ना, हम कस्टमर के पास लेके जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं होगा, हम कस्टमर की नीड एनालिसिस नहीं करेंगे, हम मार्केट को रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ऐसे ही कुछ भी बना देने से प्रोडक्ट नहीं बिकता है। वी हैव टू हैव अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू understand what the market is looking for, what are the clients looking for, and what value proposition we can add in our product or service कि वो बिके, right? उसके बाद product validation की बात होती है, but these are all pre-sales steps which I am talking. Then after we do that, we create offers for customers, and then we manage qualifying of deals. क्वालिफाइंग ऑफ डील्स का मतलब क्या होता है? जैसे पेमेंट प्लान्स हो गए, पेमेंट टर्म्स हो गए, कितना पेमेंट रखना है, क्या प्राइस रखनी है, ये सारी चीजें आ गई डील क्लोज करने के लिए। अभी क्या होता है, आप कैसे प्राइस करते हो अपने प्रोग्राम को, बताओ? डू यू हैव एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा टू से कि नहीं मैं इस वजह से इतना प्राइस रख रहा हूं? कैसे प्राइसिंग करते हैं हम? उसके पीछे भी रिसर्च होना चाहिए ना कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, कि भाई हम यदि अपने प्रोडक्ट का प्राइस 5,000 रख रहे हैं, 5 लाख रख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए ना, कोई रीजनिंग होनी चाहिए। कैसे करते हैं? यदि आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया, मैं बताता हूं, एक सिंपल तरीका यही है। बेस्ट तरीका क्या है? मार्केट में आप जाओ, मार्केट रिसर्च करो, देखो कि आपके तरह की सिमिलर सर्विस कितने में लोग दे रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनका आउटपुट क्या रहा है। वो होता है सिंपल, आप कॉपी कर सकते हो, बट उसमें भी आपको वेरिएशन करना पड़ेगा कि कोई कोच यदि 10 साल पुराना है, वो मान लीजिए 1 लाख रुपया ले रहा है, आप सोचोगे यार वो तो 10 साल से कर रहा है, 1 लाख रुपया रहा है, आप भी शुरुआत करो 1 लाख से। पॉसिबल है इफ यू आर रियली टू दैट पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं गाइडलाइन तो चाहिए ना। आप अचानक से नहीं कहोगे कि यार मैं तो 10 लाख से शुरू करूंगा, है ना? तो देर हैज टू बी अ बेंच मार्किंग ऑफ द प्राइसिंग एज वेल, करेक्ट? बट इट डिपेंड्स अपॉन योर कोर स्किल्स। there are beginners who are charging lakhs and lakhs of rupees, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, because they believe in themselves that they are providing that kind of a value. यदि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप उतना वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप प्राइस रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, पीपल विल पे यू, बट इट हैज टू बी लॉजिकली जस्टिफाइड, राइट? जरूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास हिस्टोरिक डाटा हो कि पहले आपने 50,000 लिया तो आज आप 1 लाख रुपया रहे हो। नहीं, आप 5 लाख ले सकते हो, डे वन से ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो 5 लाख से आप क्लाइंट को प्रॉमिस करो कि आप उसको 25 लाख करवा दोगे, है ना? तब वो 5 लाख आप डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो। तो ये सारे डेटा जो है ना, ये डेटा आपको एक गाइडलाइंस दे, ताकि आप आपका काम आसान हो जाए, विच पीपल नॉर्मली डोंट डू, बट आप करेंगे तो अच्छा होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट,
डेमोन्स्ट्रेशन अगेन, प्री सेल्स प्रोसेस में आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज गोना वर्क, करेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है, आपने देखा होगा स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, आप देखे होंगे कि फ्री के सेशंस होते हैं। आप कोई बच्चा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, आईएएस का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो कहते हैं कि सर आओ अपने बच्चे के साथ आप फ्री क्लास ले लो। तो देखा है, आपने सुना है, होता है ऐसा, राइट। वो क्या है, एक्चुअली यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर प्रोडक्ट सर्विस गोना वर्क। यहाँ भी कोचिंग इंडस्ट्री में द फ्री कॉल्स, या आप उसको क्वालिफाइंग कॉल कह लो या फिर फ्री सेशंस कह लो, लोग देते हैं ना कोचिंग में, दैट इज व्हाट, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि इस तरह के सेशंस होंगे और इस तरह के वैल्यू आपको मिलने वाली है इन द फ्यूचर। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको एज ए प्री सेल सिस्टम्स रेडी करके रखना पड़ेगा। यू कैन डू इट लाइव और यू कैन डू इट रिकॉर्डेड एज वेल, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, right? And then objection handling. You need to listen to the customer concerns and address them before even going on the call. अब आप कहोगे कि कॉल पे जाने के पहले कैसे करेंगे? So when you are talking to your audience, when you are talking to your prospect needs to be in communication with you. आपके साथ बात करेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और बात करते के क्रम में आप उनसे कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछते हो। जब क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछोगे तो वो कुछ आंसर करेंगे, यस नो व्हाटएवर। वहां पे जाके आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है पहले से ही, कि भाई यदि वो कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे आपका कोचिंग ले पाऊंगा। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, यदि आपने कभी किसी के साथ चैट किया है तो कहेंगे कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये क्या है, ऑब्जेक्शन है। तो ये प्री सेल्स ऑब्जेक्शन है, अभी तो सेल्स कॉल आपने करी नहीं है, आप तो चैट में ही बातें कर रहे हो। सो यू कैन क्वालिफाई, यू कैन आस्क देम सर्टेन क्वेश्चंस सो दैट यू कैन मेक देम अवेयर कि इतना चाहिए। इसके बाद भी यदि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन यू कैन से ओके फाइन, अभी आप फ्री में रह लो, या आप देख लो, सर्च कर लो, जहां से भी आप कर सकते हो। बिकॉज इफ आई एम गोना वर्क विथ यू, आई विल डेफिनेटली चार्ज यू समथिंग, एंड दिस इज, वो जब चार्ज तब मैं बताऊंगा जब आप रेडी हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। दैट इज हाउ आई डू इट, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि आप अचानक से बोलोगे कि आ जाओ और इतना पैसा दे दो, तो कोई नहीं देता। मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है, राइट। सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्री सेल्स, वेर वी आर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस बिफोर गोइंग ऑन द कॉल, राइट। ओके, अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्री सेल सिस्टम्स इन योर बिजनेस, दैट इज आई एम गोना कवर नाउ, राइट। नंबर वन, क्रिएट अ फ्री गाइड। आप एक गाइड बनाओ, जो मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को बता रखा है कि गाइड बनाने की जरूरत है। whenever you are talking to somebody and they are interested in your services, don't just jump on the call immediately. Talk to them for some time and give them something for free. So that is why I'm saying creating a free guide. आप एक गाइड बना के भेजो, and this is what my guide is. मैंने it is loading, okay, it is already linked to this sheet. तो मेरा एक फ्री गाइड है जो मैं लोगों को भेजता हूँ। दिस इज माई फ्री गाइड वेयर इट सेज द फर्स्ट 10K फॉर्मूला। कैसे आप फर्स्ट 10K बना सकते हो। इट इज अ फ्री गाइड ऑफ 12 पेजेस। आप कैसे भी बनाओ, लेट इट बी अ डॉक्यूमेंट, अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वेयर द पर्सन, इट शुड बी जेनरिक इन नेचर एंड द पर्सन शुड बी गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस, करेक्ट। यदि मैं इसको प्ले करूं, क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा दूसरे ब्राउजर में। बट आई एम शेयरिंग, आई हैव शेयर्ड दिस गाइड विद लॉट ऑफ पीपल। तो एक गाइड का मतलब होता है कि जब कोई बंदा आपके साथ, कोई भी इंसान आपके साथ जब चैट कर रहा है, बात कर रहा है, दे आर इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, गिव देम समथिंग फॉर फ्री सो दैट यू कैन फर्दर कम्युनिकेट विद देम। आपके पास एक रीजन होता है टू टॉक, टू आस्क, भाई आपने मेरा गाइड पढ़ा, आपने मेरा गाइड देखा, आपने उससे क्या सीखा। सो यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स टू टच ऑन आफ्टर सेंडिंग दिस गाइड। और यदि आपको ध्यान हो, ऑन द डे 2 विच आई टॉक्ड अबाउट इन्फ्लुएंस, वहां भी मैंने बात करे थे कॉन्सेशन की, गिविंग फर्स्ट। रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर दैट? मैंने बोला था उसमें कि गिविंग फर्स्ट, सो यू आर गिविंग इट फर्स्ट। आप ले कुछ नहीं रहे हो, आप उनको दे रहे हो। तो व्हेन यू गिव फर्स्ट, यू हैव द राइट टू आस्क समथिंग एंड पीपल विल से यस टू इट। भेजने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से, right? Because you have already given them something. So this is one thing which you have to do. Second, create an offer video. ऑफर वीडियो में क्या होता है, आपके प्रोग्राम के की जो डिटेल्स हैं वो आपको इसमें क्रिएट करनी होती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑफर वीडियो वेयर आई से दैट दिस इज एन वीडियो वेयर आई एम गोना टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज इनसाइड। क्योंकि सेल्स कॉल पे जाके आपको प्रोग्राम की बातें नहीं करनी होती है।
सेल्स कॉल इज नॉट अ सेल्स कॉल, एक्चुअली इट्स अ परसुएसिव कॉल, राइट? जहां पे आप जाके क्वालिफाई करते हो, तो आपको अपने प्रोग्राम की डिटेल कहाँ बतानी है? इसमें बतानी है, इन द ऑफर वीडियो, राइट? इज इट क्लियर? सिद्धार्थ जी, हैव यू डन इट बिफोर? यस, नो, गायब ही हो गए। सर थोड़ा इसको चला सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल चला सकता हूँ, मैं प्ले करूँ। Recording in progress. Hello and welcome everyone. My name is Alok. I'm a business coach for coaches. And in this video, I'm going to talk about what you're going to get when you get into my program, which is personalized handholding along with one-on-one mentoring. So the name of the program is definitely different from this. You might be knowing, but let me tell you, this is a very customized and a special way of teaching, especially when it comes to business coaching. So I'm not going to just talk about what a business is, what you're doing, what you should be doing as a strategy, but I'll be taking care of the entire holistic approach towards building a business. So welcome to the very first 2 or 20 coaching system, which is an amalgamation of the group coaching as well as the personal mentoring. So this you are going to do along with me and the team of brilliant coaches who are already doing it. So that is why, because I wanted to introduce the power of community learning, I brought this together and now I'm presenting to you the first ever 2 or 20 coaching system. So 2 represents the personal mentoring as well as the group coaching. O represents a holistic 360-degree approach towards building your business as a person, as a professional. So I can share this video, don't worry. I can share this video to you guys. Nothing to worry about it. The point is, कि Alok ये, ji, yes, along with this video, if you can share the write-up of the lead magnet that you just saw previous of this video. which one? I didn't get it. $10K roadmap. अच्छा, वो PDF की बात आप कह हाँ रहे हो? PDF, हाँ. अच्छा, ठीक है, Okay. I'll share with you. So the point is, मिठू, आपको चाहिए तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा ये वाला वीडियो. मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, I believe. But if you हाँ. want it, I can again share it that with you. So what you have to do is you have to give your customer pre-end information कि कॉल पे जाकर के वो ये ना पूछे जी आप दिन में कितनी बार पढ़ाते हो, सप्ताह में कितनी बार पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, ये सब आपको पहले बता देना है, राइट? तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है. और जो कॉल की बात है ना, वाई आई एम सेइंग दैट दैट हैज टू बी अ परसुएसिव कॉल, क्योंकि वहां पे जाके हमको यही सारी चीजें करनी है. हमें वहां पे जाके ये नहीं करना कि आप जाकर के वहां पूछ रहे हो, क्लाइंट पूछ रहा है कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. एंड 20 इज द मिनिमम. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वो वीडियो अभी भी चल रहा है बैकग्राउंड में. आई नीड टू क्लोज दैट. ओके, जस्ट अ सेकंड, या वो वीडियो बैकग्राउंड में चल ही रहा था. ठीक है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफर वीडियो. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, देन क्रिएट अ क्वालिफाइंग क्वेश्चनेयर. जैसे मैंने बोला कि आपके कॉल पे आने के पहले यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपके कॉल पे कौन आ रहा है और वो क्वालिफाइड है कि नहीं है. क्वालिफाई करने के लिए मैंने ये 2 चीजें बताई, बट एक क्वेश्चनेयर भी होता है. एंड दैट क्वेश्चनेयर नीड्स टू बी फिल्ड इन एडवांस सो दैट यू आर अवेयर कि क्लाइंट क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है तो यू नीड टू इमीडिएटली say that okay, you do not qualify, maybe we can talk next time, there is nothing wrong in it, but you are not qualifying at this point of a time, so let's not waste our times. Correct? So creating a qualifying questionnaire. अभी qualifying questionnaire कहाँ है? आप देखोगे मैंने जो बनाया हुआ है वो मैंने कैलेंडली में क्वेश्चंस डाले हुए हैं. करेक्ट? व्हेन यू फिल इन माय कैलेंडरी क्वेश्चंस, तब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं. करेक्ट? अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस. लेट मी सी, ये मैंने लाइव डाला हुआ है यहाँ पे. सो इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द डेज, से लेट्स से 23rd, एंड लेट्स से आई पुट इट हियर, यू विल फाइंड सम क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, राइट? नेम और ईमेल के अलावे आपके पास कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस है. मैंने साफ साफ इसमें पूछा हुआ है
कि इफ वी आर ए गुड फिट व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बजट डू यू हैव अवेलेबल। करेक्ट, मैंने पूरा इसमें डाला हुआ है। यदि आपके पास बजट नहीं है सो यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर माई प्रोग्राम, राइट? सो आई हैव द फुल राइट टू टेल यू कि भाई आप मेरे लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, सो लेट्स टॉक सम टाइम लेटर। नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई बुराई नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप let's say you are having 10 lakhs of money in your pocket and you want to buy Mercedes। मर्सिडीज के शोरूम में जाके आप बोलोगे कि मेरे को 10 लाख में मर्सिडीज दे दो, तो कोई नहीं देगा, बोलेगा भाई 30 लाख रुपए लेके आओ मिनिमम। करेक्ट, बट दैट डजंट मीन यू डोंट डिजर्व, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट देर इज अ प्राइस टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट, उस प्राइस को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, यदि आप उसको वैल्यू करते हो तो उस प्राइस लेकर के आओ और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ो। करेक्ट, so this is again a qualifying questionnaire which you need to have in your pre-sale system so that you are qualifying your customers before coming on the call, right? ठीक है, you can choose your set of questions but it is mandatory. Now the fourth point is communicate on chat or call to understand the expectations, pains and urgency। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉल बुक कर दिया तो उनको अभी के अभी चाहिए ही चाहिए। उनका पेन यदि नहीं है, उनको अर्जेंट नहीं है ये चीज, तो नहीं करेंगे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई बाय टॉकिंग ऑन द चैट एंड द कॉल हाउ अर्जेंट देयर नीड इज, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर देयर पेन्स। ये चीज आपको पहले क्वालिफाई करनी पड़ेगी सो दैट योर कॉल बिकम्स इवन मोर इफेक्टिव, राइट? हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉल बुक हुआ हम लोग दौड़ के चले जाते हैं, चल भाई कॉल बुक हो गया, चलो कॉल पे जाते हैं। ऐसा करते हैं ना मोस्टली, बट वो नहीं करना है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपके कन्वर्जन्स डेफिनेटली नहीं होने वाले, बिकॉज द कस्टमर इज नॉट रेडी। अब जो कोई रेडी नहीं है तो कहाँ से आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो। उसको रेडी कराना है साइकोलॉजिकली, मेंटली, ताकि उसको लगे कि यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर एंड दैट इज वाओ दे विल बी गोइंग टू टेक एन एक्शन। अदरवाइज फिर वही होगा, अच्छा जी सोचेंगे, देखेंगे जी, बताएंगे जी, विल कम बैक टू यू, विल गेट बैक टू यू। वो कभी कम बैक गेट बैक नहीं होता है, राइट? ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने उनके पेन को समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं, और या उनका पेन है ही नहीं, बोथ वेज। करेक्ट, तो जिसका पेन नहीं होगा ना आपके पास, आपकी तबीयत खराब नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। करेक्ट, एज सिंपल। तो वही चीज आपको भी समझनी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज ऑफर अ कॉल बुकिंग व्हेन द रैपो एंड ट्रस्ट इज बिल्ड। जब आपने पेन को एनालाइज कर लिया, उनकी अर्जेंसी को एनालाइज कर लिया, आपने रैपो और ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तब जाके आप कॉल बुकिंग का ऑफर करो, उसके पहले नहीं। यदि कोई इंसान, इट इज लाइक, आप एग्जांपल देखो ना, यदि आप किसी के साथ दोस्ती भी करना चाहते हो, जब तक उसके साथ आप फ्रेंडली नहीं होगे, 4 बार उसे मिलोगे नहीं, तो क्या उसके साथ मूवी देखने जाओगे? नहीं ना। तो 4 बार मिलना इज व्हाट, बिल्डिंग रैपो एंड ट्रस्ट। जब आप 4 बार किसी के साथ मिल लेते हो, तब यहाँ पे जो 4 बार की मैं बातें कर रहा हूँ, 4 बार कैसे हो रहा है? यू हैव सेंड अ डॉक्यूमेंट, यू हैव सेंड अ फ्री पीडीएफ, यू हैव सेंड अ वीडियो, यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू देम मल्टीपल टाइम्स। जब ये सारी चीजें करते हो, तब जाके आपको लगता है और उस बंदे को लगता है कि यस दिस पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, और आपका उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। तब जब आप उनको कॉल बुकिंग ऑफर करते हो, देन दे टेक द कॉल, then they'll be saying yes to the call booking, and they'll, whenever they come, they are more likely to take a decision, right? That is how it works. ठीक है, is it okay? Sir, once again, you will repeat the third and fourth. Yeah, okay. First, the free guide you have said. Second, that offer video we have to make and send. Like offer video, this is like pre-sales. Yeah, ये सारे प्री सेल्स की हाँ. चीजें बता रहा हूँ। And yeah. Qualified questionnaire in that calendar link. कैलेंडर, यस। आप चाहे गूगल फॉर्म में भी बना सकते हो, बट ऑटोमेशन कैलेंडर के साथ अच्छा होता है, क्योंकि कैलेंडर हाँ में हाँ फॉर्म भरने के बाद इमीडिएटली यू बुक अ कॉल। सो कैलेंडर इज अ गुड ऑप्शन, राइट? देन द फोर्थ पॉइंट इज communicating on chat and to understand the expectation, pains and urgency। ये चैट के थ्रू होता है, क्योंकि कोई अपना दर्द ऐसे बयान नहीं करेगा जब तक आप उससे पर्सनली बात नहीं करोगे। आप ही बताओ, कोई अनजान आदमी से आप अपना दर्द शेयर कर दोगे? नहीं ना। तो आपको उनके साथ बात करनी है, आपको उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, सो दैट दे शेयर देयर पेन्स, दे शेयर देयर एक्सपेक्टेशन विथ यू। आई आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से, इफ यू आर टॉकिंग टू मी, दिस इज माई प्रोफाइल, हाउ कैन आई हेल्प यू, are you looking for this kind of a service? If yes, good, but how urgent it is?
क्या आप अभी करना चाहोगे या आपने सोचा है 5 साल के बाद करना है? ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं अच्छा चलो यार 6 महीने के बाद करेंगे, होता है यार अभी तो बिजी हूँ बाद में करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव अर्जेंसी। क्लियर? एंड ऑल कॉल बुकिंग इज व्हेन द रैपो इज बिल्ट, राइट? ये हो गया मिठू, आप नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स प्रोसेस। ओके, तो सेल्स प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली ये स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया। व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस? A sales process is a set of repeatable steps that a salesperson take a prospective buyer from early stage to awareness to close sales. ये पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू द क्लोजिंग ऑफ अ सेल। उसमें रिपीटेबल स्टेप्स होते हैं जो एक सेल्स पर्सन, लेट्स से वी आर कोचेस एंड वी आर डूइंग सेल्स ऑन आवर ओन बिहाफ, तो हमारा क्या है, अवेयरनेस स्टेज से लेके क्लोज स्टेज के बीच में जितने स्टेजेस होते हैं उसको हम सेल्स प्रोसेस कहते हैं, राइट? और एट एन एवरेज जो टॉप सेलर्स होते हैं इन दिस वर्ल्ड, दे आर स्पेंडिंग अबाउट 6 hours एवरी सिंगल वीक फाइंडिंग एंड रिसर्चिंग देयर प्रोस्पेक्ट, कि उनके प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो इफ यू आर इनटू एनी बिजनेस एंड इफ यू आर नॉट रिसर्चिंग अबाउट योर प्रोस्पेक्ट for 5-6 hours on a daily basis, understanding their pains, their needs, their urgency, then you're losing lot of business, right? तो आपको ये करना है। अब इसके स्टेप्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दो स्टेप्स। वेलकम अनुपम, गुड टू सी यू। ओके, सो व्हाट आर द सेल्स स्टेप्स? नंबर 1, सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला हमें विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। उसके बाद हमें रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जो पता सबको है, करते बहुत कम लोग हैं। लोगों को बहुत जल्दी होती है सेल्स करने की और दे मिस ऑन दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब तक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है कस्टमर के मन में। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा उसके बाद आती है बात एम्पैथी की। आपको एम्पैथी शो करना है व्हाइल टॉकिंग टू योर ऑडियंस और टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट, राइट? ये चीजें मिस हो जाती हैं लोगों से। लोग सीधे आ जाते हैं सेल्स के ऊपर, गैप एनालिसिस करते नहीं है कि क्या गैप है उनकी और हम क्या सर्विस कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद उनको सोल्यूशन नहीं बताते। वो कहते हैं यार सोल्यूशन हम बता देंगे तो फिर सेल्स क्या होगा मेरा। तो हकीकत ये है कि यदि आप ये सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यू विल बी बिल्डिंग रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, एंड द क्लाइंट वुड बी मोर हैप्पी टू वर्क विथ यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी शोन द राइट वे। आपने उसको अच्छा गाइड करेंगे तभी वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ होल्ड नहीं करना है अपने पास, क्योंकि होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं। आप नहीं बताओगे कोई और उनको बताएगा, ऐसा है ना? एक डॉक्टर यदि इलाज नहीं करेगा तो क्या आप बीमार रहोगे? आप जाओगे ना दूसरे डॉक्टर के पास। सो बेटर कि जो आपके पास आ रहा है उनके साथ आप पर्सनल एम्पैथी शो कीजिए, उनके पेन को समझिए और उनको सही गाइडेंस कीजिए। दीज आर द 5 steps, 6 steps टू बिल्ड अ सेल्स प्रोसेस, राइट? क्लियर है? इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं बताइए? हमने विजिबिलिटी के लिए पोस्ट कर दिया, कमेंट कर दिया, उसके बाद ये चीजें रह जाती हैं, हाँ या नहीं? इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, जितना ज्यादा बढ़िया रिलेशनशिप आप बनाइएगा उतना अच्छा आपका सेल्स प्रोसेस होगा, राइट? ओके, नाउ हाउ टू इंक्रीज विजिबिलिटी। हम इन्हीं सबको एक एक पॉइंट लेके बताता हूँ। इन आर डे टू डे लाइफ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। हाउ आर वी गोइंग टू डू विजिबिलिटी, इंक्रीज विजिबिलिटी? बाय क्वालिटी कंटेंट्स। हमारी विजिबिलिटी होती है हमारे एक्शन से। हमारा हमारा एक्शन कैसे दिखता है? द वे वी प्रोड्यूस आवर कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया, करेक्ट? उससे हम विजिबल होते हैं। प्लस वी ऑल्सो डू कमेंट्स। तो कमेंट्स ऑन कंटेंट्स, दीज आर द टू मेथड्स which increases our visibility, and that's the only way to do it on any of the social media platforms. बताइए और क्या कर सकते हो? कंटेंट कुड बी एनीथिंग, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, फोटो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर विजिबिलिटी इन द ऑडियंस, राइट? सेकेंड, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कमेंट्स होते हैं और चैट्स होते हैं, क्योंकि कमेंट से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने ऊपर, और कॉन्टेक्चुअल चैट से आप उनसे बात करना शुरू करते हो। जब वन ऑन वन बात आप करना शुरू करते हो तभी रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो आप ग्रुप से प्यार नहीं कर सकते, आप एक इंडिविजुअल से प्यार करते हो, राइट?
जब एक इंडिविजुअल से प्यार करते हो तो इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हो। इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जब हम इंडिविजुअल चैट्स करते हैं, सिंपल। तो वही चीज हमें यहाँ भी अपनाना है। यदि हमें किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, इट हैज टू बी वन ऑन वन। पोस्टिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आपने पोस्ट कर दिया, 10 लोग देखे, 4 लोग देखे, आपको नहीं पता है 1000 लोग देख रहे हैं, वहां पे आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप तभी बनता है जब आप वन ऑन वन किसी के साथ बातें करते हो, राइट। दैट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। उस बंदे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बाय शोकेसिंग योर अचीवमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स and your genuine and transparent things which you have done earlier. That is how you build confidence in your audience. ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि मैं तो let's say I have done so much of a thing, but आप हकीकत में वैसा चीज नहीं है, जेन्यून नहीं है, वो पता चल जाता है। मार्केट इज नॉट सो बिग, पीपल आर अवेयर हु यू आर, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू। सो यू हैव टू बी जेन्यून, you have to be transparent, and you need to showcase if you have any achievement of yours or any testimonials of yours which you have. इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस और नो? ठीक है। नाउ हाउ टू बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक होना इज लाइक कनेक्टिंग विद देयर पेन्स। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली और सुपरफिशियली यदि आप किसी से जुड़ते हो ना, तो वो फिर प्यार में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं प्यार से इसलिए जुड़ रहा हूं बिकॉज लव इज अ वेरी इंटेंस फीलिंग, and if you can create that love for your customers, you win those hearts, and if you win those hearts, you win those customers. Do you agree to it? ठीक है ना? सो कैसे आप करेंगे? जब उनका पेन आपको अपना पेन लगने लगेगा, ऑनेस्टली, जेन्यूनली। ये कैसे होगा? भाई पुटिंग योर सेल्फ इन देयर शूज। आप उनको, उनके शूज में अपना पैर डाल के देखो कि यार उनको क्या दर्द हो रहा है। यदि वो दर्द आपने महसूस करना शुरू कर दिया, दैट इज द वे टू बी एम्पैथेटिक इन रियल सेंस, राइट। एंड हाउ टू फाइंड द गैप? बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, उन्होंने क्या किया अभी तक, क्यों नहीं सॉल्व हो पाया अभी तक। ये सारी चीजें जब आप बातें करेंगे ना, सो यू फाइंड द राइट गैप। और उस राइट गैप को फाइंड करने के बाद देन यू सी वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर हिम और हर और नॉट। यदि आपको लगता है उस गैप को आप फिल कर सकते हो, गो अहेड, राइट। शो द राइट वे। आप उनको बताइए, इजी एक्शनेबल स्टेप दीजिए, सो दैट दे स्टार्ट गेटिंग सम रिजल्ट्स। मैं नहीं कहता फ्री में सब कुछ कर दे दीजिए, बट उनको कुछ तो रास्ता ऐसा बताइए ताकि उनको लगे कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज रियली वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, एंड उन्होंने जो मेरे को गाइड करा उससे मेरे को फायदा भी हो, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स विच विल हेल्प यू डू दिस। सो आपने अभी देखा, हमने जो बात करी वो बात करी है सेल्स प्रोसेस की, राइट। सेल्स प्रोसेस की बात करी है जिसमें हमने विजिबिलिटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंक्रीजिंग एम्पैथी, गैप फाइंडिंग एंड शोइंग द राइट वे। ये हमने 6 स्टेप्स की बात करी। नाउ यदि आप कोई भी सेल्स प्रोसेस करते हैं, इसमें इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिए सो दैट योर सेल्स प्रोसेस बिकम स्मूदर। जब आप ये चीजें कर लेंगे ना, तो आपका सेल्स साइकिल छोटा हो जाएगा और आपके सेल्स कन्वर्जन्स बढ़ेंगे, राइट। So these are the 6 points. Now let's talk about the post sales process. Anybody has any questions till here? हमने प्री सेल्स की बात करी, सेल्स की बात करी. Now we are going to proceed ahead with the post sales process. Anybody has any questions related to any of the 2 parts, pre sales and sales? कोई question? Any doubts till now? No, sir. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट सेल्स प्रोसेस की. सो पोस्ट सेल्स प्रोसेस क्या होता है? अब आपने नाम से ही पता है कि सेल्स के बाद क्या होता है. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार जब तक पैसे नहीं मिले ना तब तक तो फॉलो अप होता रहा, राइट. एक बार पैसे चले गए उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. ऐसा सुना होगा आपने. उससे क्या होता है? क्लाइंट का ट्रस्ट इमीडिएटली गिर जाता है. यार अभी तक तो इतना फॉलो अप हो रहा था, बिकॉज दे डोंट हैव अ पोस्ट सेल्स प्रोसेस इन प्लेस. करेक्ट. एंड दैट इज अगेन अ वेरी डिवास्टेटिंग स्टेज, बिकॉज जब बंदा ने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके पैसा दे दिया, अब पैसा लेने के बाद आप एकदम चुप हो गए, आप गायब हो गए. उनको लगेगा पैसा जिसने दिया उसको, उसके ऊपर सोचा कैसा बीतेगा.
उनको लगेगा अरे यार अभी तक तो बंदा इतना फॉलो अप कर रहा था कि सर मैडम ये कर दो, ये कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे आपने पैसे दिए उसके बाद से सब गायब, right? So you should be having a good post sales process in place so that the client is never the client never feels like alone और बेचारा छूट गया, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? So let's talk about the post sales process कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, राइट? सो पोस्ट सेल्स प्रोसेस का जो डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज सिंपल. The post-sales phase of the sales process involves activities and support for a customer after a sale has been completed. इसके बाद हमें उनको सपोर्ट एक्टिविटीज देनी है. कैसे देनी है? उसमें भी क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, क्रिटिकल टास्क को प्रैक्टिस करना होता है, डिफरेंट अप्रोच लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल टच पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है, एंड यू नेवर लेट देम फील अलोन और लॉस्ट. दीज आर द पोस्ट सेल्स प्रोसेस स्टेप्स जो मैं अपने बिजनेस में भी करता हूं और मैं यही सजेस्ट भी करता हूं दैट यू शुड बी डूइंग दिस. करेक्ट? अब लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स इन एग्जाम्पल के तौर पे. मैंने इसके डिटेल्स में नहीं गया हूं, आपको मैं ये बताता हूं, ये वाला, कि इसमें से यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार सब चीजें तो बड़ी सिंपल सी ही हैं. करेक्ट? रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बट यदि आप उस बंदे को छोड़ दो आफ्टर द पेमेंट इज डन, कैसा फील होगा, राइट? तो पोस्ट सेल्स प्रोसेस में ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. एक इन्वायरमेंट एक्चुअली क्रिएट करना पड़ता है कि यस आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर विथ यू. एंड इफ यू हैव बीन इनटू माय कोचिंग सेशंस, वी हैव पीपल, तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता हूं ताकि आपको कभी भी अकेलापन फील ना हो. आपको लगे कि यस दैट पर्सन इज देयर फॉर यू एनी टाइम यू विश टू टॉक, टू आस्क एनीथिंग. तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है. प्लस कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सेल्स मॉक सेल्स कॉल्स, मैं बताता हूँ मॉक सेल्स कॉल्स, इवन मॉक चैट्स हम करते हैं एज ए प्रैक्टिस. जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी विल डेफिनेटली डू इट. और ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां से आपका पोस्ट सेल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिलेशनशिप और अच्छी होती है. और इसके लिए मल्टीपल टच पॉइंट्स है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल्स है. सो यू हैव मल्टीपल टच पॉइंट्स जहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू नेवर फील लॉस्ट. सो दीज आर द पोस्ट सेल्स प्रोसेसेस. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट सेल्स एक्सपीरियंस. पोस्ट सेल्स एक्सपीरियंस क्या है? इट्स अगेन अ जर्नी जहां पे हमने क्या बोला था कि पोस्ट सेल्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट तो क्रिएट किए, वो सारी चीजें तो हमने दे दिया, अब हम कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर तो आ चुका है आपके पास, राइट? कस्टमर आ चुका है, कस्टमर आपके साथ जुड़ चुका है. अब उनको आपको एक्सपीरियंस देना है. एक्सपीरियंस कैसा देना है ताकि उनको लगे कि उनका इन्वेस्टमेंट सही है और उनको ग्रोथ मिलनी शुरू हुई. करेक्ट? अब उनको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन देयर नीड्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद प्री सेल्स में आपने उनके साथ बात नहीं कर पाए होंगे, चाहे कितना भी आप कर लो. ठीक है? तो अब क्या करते हैं हम, उनको टेलर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. और ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो उनके साथ आपको लंबा चलना होता है, क्योंकि रिजल्ट्स आप एक दिन दो दिन में दे नहीं सकते. तो जब तक ये एक्सपीरियंस आप उनको अच्छा नहीं दोगे, वो आपके साथ टिकेंगे नहीं. उनको लगेगा यार मेरा पैसा वेस्ट हो गया, या क्या मैंने कर दिया, गलत डिसीजन हो गया, वो उस तरह की रिग्रेट मन में आने लगती है. So your post sales experience is a journey to your audience, to your customer actually, because it is post sale. उन्होंने पैसे दे दिए, वो आपके पेड कस्टमर हैं, और पेड कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कुछ. तो वो जो एक्सपेक्ट करेंगे उसका पर्पस ही है ताकि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट करें. राइट? नाउ कैसे कैसे करते हैं हम, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं इसमें इंश्योर करता हूं. पहला, फॉलोअप. उनके साथ आप फॉलोअप लीजिए कि आपने क्या काम करा. जैसे आपने उनको कोई असाइनमेंट दिया, आप इंश्योर कीजिए कि वो चीजें हो रही हैं. आप 4 बार पूछेंगे तो जरूर करेंगे. कई सारे लोग थोड़ा स्लो होते हैं, दैट्स ओके. बट फॉलोअप से क्या होता है, आप रीइंफोर्स करते हो कि आपका कोचिंग इंटरनलाइज्ड हो गया एक्चुअली, मतलब आपका कोचिंग वर्क करना शुरू कर दिया उस इंसान के लिए. सेकेंड इज एक्शंस इनेबलमेंट. आप उनको
कुछ रेलेवेंट सेल्स असाइनमेंट दीजिए ताकि उनका कोचिंग सेशन जो है नॉलेज के साथ साथ आगे बढ़ता रहे, स्किल बढ़ता रहे। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज बता दी और इमीडिएटली कुछ जादू हो गया। वो स्किल बेस्ड इनहेंसमेंट होती है जो आपको इनेबल करना है। थर्ड इज स्टैंडर्डाइजिंग कोचिंग प्रोसेस। आपको एक स्टैंडर्डाइज कोचिंग प्रोसेस बनाना है ताकि आपके क्लाइंट को एक रेगुलर रोड मैप मिले। उनको लगे कि हाँ भाई मेरे ये गोल्स हैं, ये उनको फीडबैक मिल रहा है, ये उनका प्लान चल रहा है और इनका ये फॉलोअप हो रहा है। इन सब चीजों को मिला करके एक स्टैंडर्ड कोचिंग प्रोसेस आपको बनाना होता है, जो शायद सुनने में आपको मुश्किल लगे बट एक्चुअली ये मुश्किल होता नहीं है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये मैं इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। मैं पूछता रहता हूँ कि आपने कितना किया, क्या किया, आपको फीडबैक देता हूँ। यदि आपने कोई पोस्ट भी करा, कहीं पोस्ट में मुझे कमी बेसी लगती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्शन प्लान नेक्स्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, एंड फॉलो अप लेते हैं, राइट। And fifth is the journey. Journey is a process of personal growth that involves exploring new areas, setting goals and pushing boundaries. हर बार ही आप अपने मिंटी को थोड़ा थोड़ा पुश करते हो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट टेलिंग कि भाई आप ये कर लो ये कर लो, यू नीड टू पुश। सो द जर्नी हैज टू बी प्लेजेंट इनफ विथ कॉन्फिडेंस विथ रेस्पेक्ट, ताकि आप उनके गोल के टुवर्ड्स उनको पुश करते रहो। ठीक है, डन। सो ये जर्नी क्या करती है? ये जर्नी उनको हेल्प करती है एक्सप्लोर करने में, सेट गोल सेट करने में, अवेयरनेस बढ़ाने में, और अल्टीमेटली जो मेरा फोकस रहता है स्किल सेट बढ़ाने में। क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे आपके स्किल्स के ही, वो आपको स्किल ग्रो करना ही करना पड़ेगा। सो दिस जर्नी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटी टू डू ऑल दिस, राइट। ठीक है यहां तक? सो नाउ आई बी समराइजिंग ऑल दिस। सो जो मेरा प्रोसेस है ना, ये जो प्री सेल्स प्रोसेस, पोस्ट सेल्स प्रोसेस एंड सेल्स प्रोसेस, ये मैंने सारा कवर कर लिया है। नाउ वी हैव टू सी कि अब हम इसको समराइज करते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट्स हैं उनको में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई? जो परसुएशन की मैं बात कर रहा था, परसुएशन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। प्री सेल्स इज क्लियर, सेल्स प्रोसेस इज क्लियर, पोस्ट सेल्स प्रोसेस इज क्लियर, एक्सपीरियंस इज क्लियर एंड द जर्नी इज क्लियर। ये पांचों स्टेप यदि आप ध्यान में रखेंगे, सो यू आर लिटरली परsuading योर ऑडियंस, करेक्ट। नाउ आई एम जस्ट समराइजिंग द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि आपको इन सब चीजों को कैसे कैसे करना है। सो दिस आई एम गोना कवर थ्रू 5 C's ऑफ मार्केटिंग। जैसे क्या होता है? पहला, कंटेंट क्रिएशन। स्टार्ट विथ राइटिंग एंड स्पीकिंग कैपेबिलिटीज। आप एआई टूल्स यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग टूल्स यूज कर सकते हो, और कंटेंट क्रिएट आपको करने ही करने हैं, करेक्ट। ये प्री सेल्स का पार्ट है। आप उसको ऐसे जोड़ के देखिए। प्री सेल्स में हमने बात करी कैसे हम बिल्ड करेंगे, विजिबिलिटी कैसे करेंगे, कंटेंट के थ्रू। सो नाउ कंटेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट as a part of pre-sales, as a part of your persuasion technique, where you are going to start writing and speaking with use of AI tools or not, that depends on you, and use some basic tools. Second is commenting. मैंने बताया रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए आपको कमेंट करना है, विजिबिलिटी भी होती है इससे और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होता है। सो आपके कमेंट्स ऐसे होने चाहिए which should amplify that what you stand for, what value system you have, and what's your USP। इन सब चीजों को मिला के आप कमेंट्स करते हो, राइट, एंड चैट्स भी करते हो एक्चुअली। सो चैट भी नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन, टॉकिंग एंड चैटिंग विथ प्रोस्पेक्ट्स, राइट। यहां भी आपको वही करना है जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन नॉट गो टू अ मूवी विथ समबडी हु इज वेरी अननोन। आपको दोस्त यार बनाने पड़ेंगे। सो व्हेन यू talk to people like a friend, you start building relationship, you start gaining trust. So conversations are again an important aspect to it. ठीक है, देन कम्स कॉल बुकिंग। कॉल बुकिंग का मैंने आपको बताया कि कॉल बुकिंग के पहले आपको प्री सेल्स प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट की नीड्स को एनालाइज करना है, डिजायर को एनालाइज करना है, गैप को एनालाइज करना है, अपना रैपो ट्रस्ट देखना है, तब जाके आप उनको इन्वाइट करना है, तब जाके कॉल बुकिंग का पर्पज सॉल्व होता है। बट इट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्स प्रोसेस। एंड देन
क्लोजिंग सेल्स। जो क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्टिंग जो मैंने आपको बताया कि आपने जो जैसे आपने बताया कि क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं, प्लस जब आपने चैट किया वहां भी आप प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कि प्री सेल्स के बाद काफी कम हो जाते हैं। सो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यू जस्ट नीड टू आंसर few questions and you are done and you close your deal. So these are the 5 steps summarizing you, which starts with content creation, comment marketing, conversations, call booking, and closing. Right? That's it. So now I have something special for you, which I'm just going to show you. But before that, if you can give me a review, I'll be sharing this link in the review. यदि आपने पहले किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार लिंक पे जा करके you can immediately give me a review. There are very few people. तो हम इसको कर सकते हैं, just a second. मैं ये लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जस्ट अ सेकेंड, और वहाँ पे चैट में भी मैं डाल रहा हूँ। गिव मी 1 minute. So you can just mention this 3-day challenge, the 333 challenge, and mention your review. What did you feel about this? At least 100 words तो आप लिखो, 2-3 लाइन लिखो, ताकि मुझे भी पता चले कि whatever I have done is has been beneficial for you or not. So the link is there in the chat and also in the WhatsApp group. कहीं से भी आप जाएंगे तो पहले रेटिंग करनी पड़ती है, फिर रिव्यू देना पड़ता है. So just give me whatever you feel like. Honest review, honest feedback. हो गया? Yes. Everybody's done it? Good. Thank you so much. So now I have only one thing to offer. How you can do it? Good. I'm not going to pitch you anything. I'm just going to tell you that these things are where it is. Okay. Okay, so I had something for you, but I'm not going to do those things. I just wanted to tell you that you need to remove the myths and get you in action. How you are going to get in action is by this intersection of this. You know, there is, you are there as a circle. I am here, and the facts. So whatever you do, whatever is working today, and whatever I can personalize for you as a strategy, that is where the action lies. And this is what I can do for you. Second is the solution which I provided today in this 3-day challenges: acceptance, persuasion, and influence. In तीनों का जो intersection है, this is going to give you results. If you have accepted the facts, you need to go and work on that.
then try to use the power of influence in order to uh, make your audience aware what you are, how you are doing, what all things. And persuasion is all about sales. इन तीनों का combination जब आप करेंगे तो आपको results मिलेंगे, right? And to do this, what is required is patience, practice, and humility. Patience, practice, and humility. और कुछ नहीं चाहिए. Patience रखते हुए आपको काम करना है. You have to be uh, keeping humility with yourself and others, and just keep practicing. That is correct. So I'm not going to pitch you anything. I'm only willing to, if somebody is willing, I can give you a link to book a call with me, and that's it. So my session is over. I have already covered persuasion, and it's already 8:11. I have not taken much of your time. Now the stage is all yours to ask anything related to your business, related to whatever we have covered today. Anyone? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी चीज आपके बिजनेस से रिलेटेड है, प्लीज डू लेट मी नो. आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड विल टेक इट फर्दर. सौरभ, कल आपने कुछ नहीं बोला था. कैसा लगा आपको सेशन? क्या सीखा आपने? यू कैन जस्ट पुट इन योर फ्यू वर्ड्स. अनुपम, यू आर ऑल्सो देयर. इफ यू हैव टू से समथिंग, प्लीज डू लेट मी नो. Okay, Mithu, thank you so much. I'm looking forward to your questions, doubts, anything which you have. Siddharthji, you need to ask your question if you have any. नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बट मैं इतना ही बोलूंगा, द वे कि 3 दिन का सेशन आपने जिस हिसाब से लिए और जैसे सिंप्लीफाई करके समझाए, आप प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा और इसको रेगुलर बेस पे डे टू डे वर्क पे लेके आना है. तो ये सेशन से जो मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीज है जो हम लोग नहीं करते हैं, नहीं प्रैक्टिस पे लेके आ रहे हैं. तो वी हैव टू डू दैट. करेक्ट. या चलिए, गुड. अनुपम इज सेइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. यस, बिजनेस बिना रिलेशनशिप के नहीं होता है. बिना रिलेशनशिप के आप वही चीजें बेच सकते हो जो कि, जिसको कहते हैं ना, डेली यूज की चीजें हो, जैसे साबुन, तेल, आलू प्याज टाइप की चीजें हैं, वो आप बेच सकते हो उससे. बिकॉज दीज आर वेरी, इसको कमोडिटीज कहते हैं ना. कमोडिटीज कुड बी सोल्ड विदाउट रिलेशनशिप, राइट? बट सर्विसेज कुड नॉट बी सोल्ड. माइंडेड. कमोडिटीज एंड सर्विसेज में बहुत फर्क है. और यहाँ पे जब हम कोचिंग की बातें करते हैं ना, कोचिंग आर स्पेशलाइज सर्विसेज, करेक्ट? तो वहां पे रिलेशनशिप ही बिकता है. एक तरह से मैं कहूं तो आप अपने आप को बेच रहे हो. तो लेट मी बी वेरी रफ saying that we are selling ourselves in the market, right? People are buying us. People are not buying our products. People are buying first. पहले कोच को खरीदते हैं, उसके बाद उसके सर्विसेज को खरीदते हैं. सो हमें अपने आप को मार्केट करना है. दैट इज व्हाट दिस एंटायर प्रोसेस इज. इसीलिए इन्फ्लुएंस भी, जो मैंने इन्फ्लुएंस के ऊपर इतना फोकस किया है ना, इन्फ्लुएंस इज व्हाट यू आर लिटरली इन्फ्लुएंसिंग एक्चुअली. मतलब लोगों के दिमाग में आप परसेप्शन बिठा रहे हो कि यू आर द बेस्ट, राइट? एंड इफ यू आर नॉट द बेस्ट, द पीपल विल गो समवेयर एल्स. एज सिंपल. सो वो परसेप्शन क्रिएट करना है. दैट इज वेयर इन्फ्लुएंस कम्स इनटू प्ले. गुड, थैंक यू अनुपम. Yes, me too. You have anything to say, ask? Sir, that no, because I can relate so many things. What you have said, it's absolutely correct. And recently, that like what you said, no, sir, that this part, where visibility and building relationship, building confidence, and empathy gap to understand the client. So that recently, that client I was talking to, when I was just following up with this client. So he was supposed to send a couple of his documents and all this thing for further process. So when I was following with him,
sorry, sir. Two dogs are there, no? So, so it's human being, we can make them understand, but pet, no, we cannot make them. So that's what. So what I was thinking and telling. So when I was just doing the following and all, like the business intention, my business intention. So when I told him, so he just told me my daughter is having a function. I cannot send you right now these documents, and my daughter is having annual day program. So I have just sent him, okay, send me tomorrow. Then I have left. Then I thought, no, I should not, because I have to then, after some time, what I did, I have written him, enjoy your daughter's program, take lot many photographs, and, give her a lot of patting. So something I have written. So he said, and take, so she also will enjoy, you also will enjoy, something just like that. After 5 minutes, I've written. So then he said, sure. Then again, 2 days also nothing happened. Then I was again yesterday, I think maybe yesterday morning, I was again just following up with him. Ki how, what about the documentation and all. And then evening, he said suddenly that no, I'm good. I'm just believing something unfortunate happened. Now only everything has to happen, and some unfortunate happened. My brother expired. My brother expired. I'm moving to my hometown, and it will take some 3 to 4 days of time. So then I have just sent him. It's absolutely, it's okay. I'm so sorry to hear your loss. May God, like how it's I've begun a big post on that. It's okay, not an issue. So I don't know what happened. What happened, I don't know. Night he sent me. He said today night only I will send you all the documents. And then tomorrow before leaving to my hometown, I will send you all the documents and I will send. So that time I realized that I have not expected that business mindset that time. The two times that empathy I have shown him, okay, fine, that is more important in your life, and I'm with you in your journey. If something like bad is happening or something, you're on up, you're on down, you're just, since you're with me means now I am also, I'm considering you as my family members. So I'm with you. So that confidence he got, and he has just said everything. So that's what I now realize that this is so much important. Correct. And had I been in your place, मैं पहले क्या करता, जैसे जैसे उन्होंने बोला ना कि डॉटर का है, तो आपने बिल्कुल ठीक करा। आपने बस शुरू में एक गलती कर दी कि पहले बोला कि ठीक है कल भेज दीजिएगा। वो बोलना नहीं था आपको, आप सीधे बोलते कि ठीक है, एंजॉय योर डॉटर्स फंक्शन एंड टेक गुड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, बस उतना काफी था। नेक्स्ट डे मैं पूछता, हाउ वाज द फंक्शन, डिड यू एंजॉय? सो इट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ following up. Next day I have asked him, but actually मेरे दिमाग में तो ये सब आया नहीं, मतलब I was not doing all these things ना. So what happened, generally just like business mentality I have just did like that. फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, because when I am, but psychologically it's very very important that how you capture your this client's mind, and I'm learning from you, so it is very, it's helping me to understand that how to basically talk and build the confidence with your client. So that is actually, it will only help you in the long run. अगर मेरा आज मुझसे मेरा सामान बिके या ना बिके, मेरा कुछ बिके ना बिके, the moment, because if one person I can make that confidence, that same person again will get the other person. So that way also it will work. Exactly. So Very there only true. I am. Very true. Very nice. You shared a very nice example actually. होता यही है कि यदि हम वही ना दोस्त बनाने, दोस्त की मेंटेलिटी से जाए ना, सेलिंग के पर्पस से नहीं जाए, तो सब चीजें आसान हो जाती है। कहीं ना कहीं वो हमें सेल्स दिमाग में घूमता रहता है ना कि सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, और उस चक्कर में हम एम्पैथी को भूल जाते हैं एक्चुअली। और सामने वाला भी तो हमारे जैसा इंसान ही है ना, अब उसके यहाँ अच्छा हो रहा है, यदि आप उसकी खुशी में शरीक होइएगा तो अपने आप आपका दोस्त बन जाएगा। दुख में शरीक होइएगा तो भी सेम। That's what I felt because that was so proud moment for me कि एक घर में कितनी बड़ी, मतलब something happened, it's a loss means it's a loss. लेकिन फिर भी the person he thought okay कि नहीं, since she is so committed, मतलब इतना confidence दिखा रही है whatever, so I should, whatever I had committed, let me also do keep the commitment.
So वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि because we have to first give from our heart, actually we have to really give to our client. हम अगर ऐसे सोच के चलेंगे कि नहीं वो मेरा client है, उससे मेरा सिर्फ पैसे का ही transactional relationship है, so then I think it is not going to happen. True. और वही बात Exactly. मुझे अच्छा लगा कि before I have lost so many clients just like that, because either I was just going to show him the presentation, बस कि Yeah. पूरा ये प्रेजेंटेशन बताना, तो कंपनी के बारे में बताना, या फिर दोस्तों पर I have never tried to win the customer's heart. Yes. वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जो मैं अभी जो मैं मतलब जब भी मैं बात कर रही हूँ, तो जब उनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने उससे लेट मी फर्स्ट कनेक्ट विद देम एंड देन बिजनेस विल हैपन लेटर। तो वो चीज सीख रही हूँ, तो उसमें ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस भी लग रहा है, अच्छा फील भी हो रहा है। सो बिल्कुल बिल्कुल। सी क्लाइंट को कभी नहीं लगना चाहिए कि आप उनके पैसों के पीछे हो। सीधी सी बात है, जैसे उनको ये फील होगा ना कि उनके पैसों के पीछे वो भाग जाएंगे, और जैसे उनको लगेगा कि आप उनके अपने हो, आप उनके हित के बारे में सोच रहे हो, उनके सुख और दुख में साथी हो, वो आकर के पैसा देंगे। तभी मैं कहता सेल्स इज नॉट डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड आप उस लेवल पे पहुंच जाओ। बस वो लेवल अपने आप का इंक्रीज करना है इन योर एक्शंस, इन योर माइंड, खुद में भी। ये नहीं सोचना कि यार मेरा क्लाइंट चला जाएगा, नहीं, आप उसको इतना दे दो कि वो घूम के आएगा, ऐसा। पहले हमेशा यही लगता था, because that day, I think yesterday only you have said that choosing versus chasing. Yeah. So earlier the thing was there always we should chase the customer, Right. convince the customer. Now actually I have changed that technique, making them aware, more aware, make them confidence, build the relationship, and then deserve the thing. करेक्ट, वेरी राइट। और मेरा एक प्रोवर्ब भी है, फॉर डिजर्व फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो आप अपने आप को इतना डिजर्विंग बना लो ना कि लोग आकर के पैसा दें, बात खत्म हो गई। और इसी के पीछे तो पूरी कहानी है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू शो दैट दे डिजर्व, करेक्ट। बट सिर्फ शो नहीं करना है, आपको एक्चुअली में डिजर्व करना है, बाय योर एक्शंस, बाय योर वेज ऑफ हेल्पिंग पीपल विद देयर मेंटालिटी, एवरीथिंग। वो सब कुछ एक पैकेज में आ जाता है। जब ये पैकेज बर्स्ट करता है ना, तो सामने वाला खुद आता है फिर आपके पास। So very nice example you shared, and this is actually the right way to do business. Business is what? Business is relationship, और कुछ नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप ही बिल्ड करना है। यदि आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया तो बिजनेस कभी कम नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर win and your knowledge as well, your learnings as well. Thank you so much. Anything else I can help you with? Anybody? I have a question. Yes, Siddharth. मेरा एक क्लाइंट आया था अराउंड मई में, तो मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, सब कुछ किया, उसने एडवांस भी दिया था मुझे। बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो घूम गया कि मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है तुम अभी स्टार्ट करो, तो मुझे ठीक है पूरा नहीं दे सकते हो तो यू कैन पे मी one installment. And then one fine morning he blocked me and he vanished. Correct. उसने एडवांस भी दिया था मुझे। तो एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम माय साइड? यस। जब आप उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा, तो डिड यू ट्राई टू फाइंड द रीजन इन स्पाइट ऑफ यू सेइंग कि आप एक इंस्टॉलमेंट दे दो? आपको पूछो भाई क्या नहीं, हुआ उसके reason पहले था? मैंने पता किया था। वो बोला मेरा पैसा अटका हुआ है। तो मैंने पहले उसको ये ट्राई किया कि ठीक है आप अभी शुरू करो, बाद में देना। तो तभी भी उसने चालू नहीं किया। I was waiting for 3 sessions for him, and then he ghosted me. So something is missing here. या तो पता नहीं उसने जब आपके साथ इन्वेस्ट कर दिया, was it a low amount? कोई छोटा सा अमाउंट होगा तो लोग भूल जाते हैं। हाँ, छोटा अमाउंट ही था। हाँ, तो छोटा अमाउंट से लोगों को वो नहीं होता ना। So whenever you take some advances, it should be some handful amount. And before taking even, you should say that this is not going to be refundable, right? Take a concept. यदि आना है तो पूरा सोच के आओ, नहीं तो मत आओ। करेक्ट। आना है तो सोच के आओ, नहीं तो मत आओ। एज सिंपल एज दैट। ये नहीं कि कल को फिर आप बोलो जी मुझे नहीं करना। और सो आई डू हैव माई ओन प्लान्स, I do respect your time, I do respect your money as well, but on the other hand I do respect my time and money as well. यदि आप मेरे को एडवांस देते हो तो मैं अपने शेड्यूल में आपके सेशंस को इंक्लूड करूंगा। I'll have to plan about you. तो यदि आप आगे नहीं बढ़ते हो, it is a waste of time for me as well. So if you are coming,
ठीक है, पार्ट पेमेंट भी करते हो कोई बात नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर देयर, नंबर 1। नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं है, आई एम हैप्पी। तो दिस इज द वे आई डू इट। यदि कोई इस तरह से कोई हेजिटेट भी कर रहा होता है ना इवन पैसे देने में, मैं उनको साफ साफ पूछता हूँ, भाई आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी, पैसे मत दो, रुक जाओ, hold on before paying me. If you are not confident on you or me, tell me, are you confident on doubting on me or are you doubting on yourself? Tell me, आपको मेरे मेरे काबिलियत के ऊपर डाउट है तो कोई क्वेश्चन है तो पूछे मेरे से, या आपके अपने ऊपर डाउट है वो मेरे को बताओ, लेट मी हेल्प यू बिफोर पेइंग मी। डोंट रश टू पे मी, एज सिंपल एज दैट। Okay, I understand. यस, सो दिस इज द So, वे आई डू इट। यस बेटा बताइए। yeah, like I just because I want to tell Siddharth sir, like it's not always that they will intentionally. Suppose like I think 1 or 2 months back, I have also gone for a webinar, and I got influenced with that webinar. And I have then and then I have made a payment also. They were having 3 days challenge, was 3 days of 4 days some challenge was there. But what happened? I could not get time to join, and then I realized कि whether it's really will benefit me for this or I have other work to do it. तो वो नहीं हो पाया। They were also calling me कि you have paid the money and you want to, लेकिन नहीं हो पाया because so sometimes it happens when people will think for the time for the moment कि नहीं maybe बाद में वो सोचते हैं कि नहीं maybe this is not aligned to my thing। तो इसके लिए हम उनके लिए बैठे नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि वी कैन नॉट ऑलवेज, वी हैव टू वर्क, मतलब और हमें सोचना चाहिए और कैसे में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं ना, बिकॉज 1 or 2 clients they may happen, it may happen, it's very normal nowadays I think, so much of overloaded, people are so much of overloaded with so many things। बहुत लोग निश का भी क्लियर नहीं, तो मे बी सिद्धार्थ सर के पास जो आना चाह रहे थे मे बी ही थॉट ऑफ कि दैट इज माई एक्चुअली निश। Now, maybe then he thought, no, that is not my niche. I will do something else. Maybe it may happen because उसने एडवांस देने के लिए भी 2 दिन सोचा था, तो सोच समझ के उसने बोला हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। बट मे बी इन द लॉन्ग रन, आई मीन 3 months ही टुक, सो मे बी माइंडसेट चेंज हो गया उसका। ओके, सी यू कैन नॉट डिक्टेट अदर्स डिसीजन, बट यस हमारा एक प्रोसेस ऐसा होना हाँ चाहिए जहाँ पे हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। हम कहें कि भाई आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ, दैट्स ओके, बट आओ तो खुल के आओ, नहीं आओ तो खुल के मत आओ। देर इज हाँ नथिंग नहीं, कॉल्ड घोस्टिंग, राइट? यस, बिकॉज आफ्टर 3 months मैंने उनको क्लियरली बता दिया था आई कैन नॉट वेट फॉर अनदर 3 months। ट्रू You have to join me within 15 days, otherwise close it ट्रू ट्रू, on a good note। ऐसे मैंने बता दिया था उनको। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, दैट्स ओके। Yeah, ऐसे लोग आते रहते हैं so business होते में। रहते, it happens। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। Yeah, इवन बड़े बड़े कोचेस के रिफंड केसेस होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि इवन रसल ब्रंसन के भी रिफंड्स होते हैं, टोनी रॉबिन्स हाँ, के भी रिफंड होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो नथिंग रॉन्ग इन इट, बस वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट वी आर डूइंग, एज सिंपल एज दैट। हमें yes, किसी को चीट नहीं करना है, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए इफ दे आर नॉट विलिंग टू, एज सिंपल। yeah, got it। डन, एनी अदर क्वेश्चंस? मैं देख रहा हूँ 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है सेशन, विच इज गुड। मैं छोटा ही बना के रखना चाह रहा था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना विच आर मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, यदि आप इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को पकड़ के ना काम करोगे तो इट विल वर्क वंडर्स। जैसे मीठू जी ने बताया ना कि एक छोटा सा एक टेक्स्ट कैसे कस्टमर के माइंड को चेंज कर देता है। तो ये सब चीजें हैं विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। यही छोटी छोटी, कोई बड़ा चीज नहीं है बिजनेस में, छोटी छोटी चीजों को लोग मिस कर जाते हैं, उसके बाद वो बड़ा पहाड़ बन जाता है, यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। छोटी छोटे एलिमेंट्स को हम पकड़ के रखेंगे ना, चीजें अपने आप हो जाएंगी। सो आई एम डन, एंड आई होप दिस 3 days वेर रियली एक्साइटिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आई बिलीव। यदि आप कोई अलग से टेस्टिमोनियल बना के देना चाहते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे ऊपर, एल्स आई एम ओके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर सक्सेस टू एवरी वन ऑफ यू, राइट? Thank you, sir. थैंक यू, टेक केयर। यस, आलोक जी, तो 3rd डे के बाद आप मुझे ये दोनों शेयर कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, पर्सनल इस पे भी करेंगे तो चलिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय।